Hello student, today is our fifth experiment of Thermology Lab 2, which is to calculate volumetric efficiency of two-stage air compressor. The main aim is of this experiment is conduct at various pressure of two-stage air compressor, and our goal is to determine the volumetric efficiency and determine the isothermal efficiency. Air compressor. First, we have to know what is air compressor. Then we can distinguish what is basic difference between single stage or two stage air compressor. Air compressor is a machine that compresses air from an initial intake pressure to a higher exhaust pressure through a reduction in volume. This is a simple compression process. A compressor consists of a power source, a compressor unit, and accessory equipments. Compressor is also two types: reciprocating compressor or centrifugal compressor. A gasoline or diesel engine provided power to operate the compressor. Gasoline or diesel engine all can provide power by the help of electricity also. Most compressors used in the NC are governed by the pressure control system adjusted to a compressed air to a maximum pressure of 100 pound per square inch (PSI). Full form of PSI is pound per square inch. Compressor units are available in reciprocating, rotary, and screw design. The screw compressor output is controlled automatically and provides a smooth, uninterrupted capacity from full load to no load to response to the demand of air. This capacity is achieved by a floating speed engine controlled and variable inlet compressor. Compressors then are classified either single stage or multi-stage. So our experiment is on two-stage air compressor, which lies in multi-stage compressor. A single stage compressor has one compressing element that compresses the air from the initial intake pressure to the final discharge pressure in one stage or in one chamber. The multi-stage compressor has more than one compressing elements. The first stage compresses the air to an intermediate pressure, then through one or more additional stages to final discharge pressure. The multi-stage system is more efficient than the single stage system because the air cooling that occurs between stages reduces buildup of pressure due to a temperature rise. Okay. All military construction compressors are governed by a pressure control system. In a reciprocating compressor, this control system causes the engine to idle and the suction valve to remain open, and the pressure reaches a set maximum value. Okay, this is the introduction of multi-stage compressor. Description of the apparatus consists of two-stage reciprocating air compressor of 3 bhp capacity of the compressor fitted with similar capacity of motor as a driver and 160 liter capacity of reservoir tank. Reservoir tank capacity is 160 liter, where we can reserve our compressed air. Air tank with orifice plate assembly is provided to measure the volume of air taken and is done with using the manometer provided. Compressed air is stored in an air reservoir which is provided with a pressure gauge and automatic cutoff. Necessary pressure and temperature tapping are made on the compressor for making difference measurement. Temperature is read using and the digital indicator, speed by the digital RPM indicator. Okay. Procedure. Check the necessary electrical connection and also for the direction of the motor. First, we have to check the necessary electrical connection. Check the lubricating oil level in the compressor, which is very necessary. Start the compressor by switching on the motor. The slow increase of the pressure inside the air reservoir is observed. Maintain the required pressure by slowly opening the discharge valve. Now note down the following reading. We have to note down the following reading, which is speed of the compressor, manometer reading, delivery pressure, temperature, energy meter reading. Repeat the experiment for different delivery pressure. Once the set of reading are taken off, switch off the compressor. The air stored in the tank is discharged. Be careful while doing so because the compressed air passes through the small area, also act as an air jet. So you can hurt anyone, which may damage you or your surrounding. Repeat the two steps after every experiment. ठीक. This is our setup which is in our Thermology lab. ठीक है, साफ दिख रहा है यहाँ पे कि टू स्टेज एयर कंप्रेसर टेस्ट रखा हुआ है आपको लैब में.
ये स्टोरेज टैंक है जिसके हमने डिस्कशन किया। ठीक, अब ये जो कंप्रेसर है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है 2 स्टेज का है, तो पिस्टन होगा, सबसे बात है पिस्टन के मूवमेंट के थ्रू उसको कंप्रेस करेंगे। पिस्टन का मूवमेंट होगा कैसे, अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए हमने यहाँ क्या लगा रखा है, मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर जो प्रोवाइड किया गया है वो क्या कर रहा है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड कर रहा है एयर कंप्रेसर को। ठीक है, क्योंकि प्रेशर के मूवमेंट को कौन पावर दे रहा है, वो पावर दे रहा है इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, ये मोटर है इलेक्ट्रिकल मोटर जो यहाँ साफ दिख रहा है, बिल्ट आपको माउंटेड है ये फ्लाईव्हील से। ये फ्लाईव्हील क्या कर रहा है, फ्लाईव्हील को पावर दे रहा है इलेक्ट्रिकल मोटर, और फ्लाईव्हील क्या कर रहा है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है इस रेसिप्रोकेटिंग जो पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पिस्टन जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो वो अपने आप तो कर नहीं रहा, उसके लिए पावर चाहिए, वो पावर फ्लाईव्हील दे रहा है, फ्लाईव्हील को पावर इलेक्ट्रिकल मोटर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेक्शन देख रहा है, दो सेक्शन अलग अलग स्पेस है या स्टेप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो एयर कंप्रेस हो रहा है ये फर्स्ट स्टेज पे हो रहा है। 2 स्टेज इसलिए बोला गया है कि यहाँ 2 बाहर कंप्रेशन हो रहा है अलग आपको सेक्शन में। ठीक है, ये फर्स्ट पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, ये सेकंड पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। थर्ड 3 स्टेज होता तो तीसरा असेंबली अलग होता, यहाँ पे 4 होता तो 4 असेंबली अलग होता। 4 स्टेप में 4 सेक्शन में अलग अलग कंप्रेशन हो रहा है, तो 4 स्टेज एयर कंप्रेसर होता है। अब इसकी हमको वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले इक्विपमेंट को समझना जरूरी है। एयर आ कहाँ से रहा है, एयर इस टैंक से आ रहा है, एयर पाइप के थ्रू एयर टैंक आ रहा है, ये पाइप के थ्रू ये फर्स्ट स्टेज में एयर आ रहा है। अब ये इस टैंक के थ्रू क्यों ले रहा है, क्योंकि एयर तो आ रहा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग से ये ऑरिफिस मीटर है, ये ऑरिफिस जो है ये दिख रहा है आपको होल, इससे ये एयर सक हो रहा है। ठीक है, अब ये एयर जो सक हो रहा है इसका किस रेट पे सक हो रहा था, इसके लिए यहाँ पे क्या रखा है, यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, दिख रहा होगा साइड में आपको दिख रहा है यूट्यूब मैनोमीटर, जिसमें वाटर है। ठीक है, वाटर लेवल सेम है, जैसे ये रन करेगा तो वाटर हेड डिफरेंस आएगा, उसे हेड डिफरेंस हम निकालेंगे। ठीक, और ये जो दिख रहा है आपको ये एनर्जी मीटर बता रहा है। एनर्जी मीटर मतलब क्या, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने इसको दी, कंज्यूम किया इसने ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि आपको मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ से। ठीक है, ऑन ऑफ का बटन, ये आरपीएम बताएगा आपको कि कितना आरपीएम, 2 रीडिंग आपको भी दिखा देगा, आरपीएम की कि कितना आरपीएम पे रन कर रहा है ये मोटर। दूसरा क्या दिखा रहा है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है, टेम्परेचर सेंसर है ये। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 1 2 3 मल्टी टेम्परेचर सेंसर मीटर है ये, 8-9 चैनल के ये, जिसको आपको पुश करते जाएगा तो इस पर T1 का, T2 का, T3 T4 इसका टेम्परेचर दिखाएगा। यहाँ से एयर आ रहा है। ठीक है, एयर कहाँ आ रहा है, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज में आ रहा है, यहाँ पे ये कंप्रेस हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे जहाँ हमको पहुँचाना है वहाँ नहीं, उसके बीच में कहीं प्रेशर पे इसको कंप्रेस किया, फिर इस पाइप के थ्रू आ रहा है सेकंड स्टेज पे, या सेकंड पिस्टन सिलेंडर असेंबली में। ये पाइप है क्या, ये पाइप में आपको देखोगे फिन्स लगे होते हैं, ये पाइप को हम बोलते हैं इंटरकूलर। इंटरकूलर मतलब बीच का कूल करने वाला, बीच का मतलब ये 2 स्टेज के बीच में लगा होगा। अगर यहाँ पे 3 स्टेज होता इसके बीच में एक लगा होता, इसके आगे भी 4 स्टेज होता, 2 सक्सेसिव आपको कंप्रेशन यूनिट के बीच में एक इंटरकूलर लगा होगा। तो ये इंटरकूलर क्या कर रहा है, और ये इंटरकूलर क्या कर रहा है कि एयर जो कंप्रेस हो रहा है उसका आपने प्रेशर तो बढ़ाया है, सर्टेन जो वैल्यू है उसकी इंक्रीज की है, साथ साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। उस टेम्परेचर को आपको क्या करना है, कम करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि हाई टेम्परेचर पे हमको कंप्रेस करेंगे तो हमको पावर ज़्यादा देना पड़ेगा। पावर देने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और अगर लो टेम्परेचर पे कंप्रेस कर रहा है तो हमको पावर क्या कम देना पड़ेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, दूर दूर होती है, तो उसको भी कंप्रेस करना मुश्किल है, ये हमको पता है। तो ये क्या करें, इंटरकूलर जैसे इसमें पास कराएंगे तो प्रेशर तो लगभग कांस्टेंट रह रहा है। लगभग किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमको मालूम है कि एग्जैक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये इसमें से फ्लो करेगा पाइप के थ्रू, ड्यू टू फ्रिक्शन से क्या होगा, प्रेशर तो रिड्यूस होगा ही होगा हल्का सा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हम क्या कांस्टेंट मानते हैं। और एयर क्या, और बाहर जो एयर है जो इसके पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है कंप्रेस्ड एयर के, उससे हीट लेगा, उसको ठंडा कर देगा। फिर ये सेकंड स्टेज में जब गया तो प्रेशर इसका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब ये सेकंड स्टेज में जब गया है तो वहाँ पे फिर इसको एयर को हम कंप्रेस किए हैं। अब मान लो इसको एग्जांपल जैसे है कि प्रैक्टिकल समझने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मान लिया हमने इसको सेट किया था और इसको हम ले जाना 80 बार पे, तो 80 बार पे डायरेक्ट फर्स्ट सिंगल स्टेज में नहीं हुआ, ये 0 से फिर इंटरमीडिएट प्रेशर गया, मतलब 32 से 30 बार तक फर्स्ट स्टेज में गया, 30 बार से फिर ये आया है 80 बार पे सेकंड स्टेज में। तो हम करते क्यों है, क्या फ़ायदा है, क्यों, पर्पस क्या है मेरा मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर का, सिंगल स्टेज में हम क्यों नहीं किए। तो इसका ये है रीजन कि सिंगल स्टेज में करते हैं तो जैसे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो एक ही स्टेज में करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो और
हम क्या कर रहे हैं, 2 स्टेज या 3 स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दे रहे, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देता, हाई टेम्परेचर में कंप्रेस नहीं करना पड़ रहा है, लोअर टेम्परेचर भी कंप्रेस करना पड़ रहा है। हाई टेम्परेचर में कंप्रेस नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमको क्या होना होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम देनी पड़ रही है, हमको साफ से दिख रही है। अब ये इंटरकूलर वही काम कर रहा है, इसकी टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है। अब ये दोनों या तो सिलेंडर पिस्टन असेंबली सेम आपके डायमेंशन के हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं जैसे हमको रिक्वायर्ड, ठीक। और ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या हो रहा है, फिर यहाँ से कंप्रेस सेकेंड स्टेज कंप्रेस होकर इस चैम्बर में आपको ये फिल हो रहा है, ठीक है, ये फिल हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक, सेफ्टी वाल्व भी लगी हुई है आपको, ठीक है, प्रेशर गेज लगा हुआ है तो आपको बताएगा कि हाँ इसमें कितना प्रेशर गेज पे आपको स्टोर किया गया है आपको कंप्रेस्ड एयर। अब सबसे पहले कंप्रेस्ड जो एयर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ यूटिलिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो हमको मालूम है कंप्रेस्ड एयर हम जितने पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट या जो भी एयर से रिलेटेड है, सब में हम कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमको कंप्रेस्ड एयर चाहिए। फिर हमको जो सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है टायर वायर, जो हम हवा फिल करते देखते होंगे इस टाइप का इक्विपमेंट, तो टायर में हवा जो फिल करेंगे वो तब कम वॉल्यूम में जा रहा है, एरिया में जा रहा है, तो एयर कैसे फिल होगा, उसका हमको प्रेशर हाई चाहिए। तो कंप्रेस्ड एयर में हम कंप्रेसर के थ्रू ही फिल करते हैं। ये कार में किसी में आप देखे होंगे जब हम बाइक में हवा बढ़ा होंगे तो एक चैम्बर सिलेंडर होता है उसमें कंप्रेस्ड एयर रहता है, ठीक है, वो कंप्रेस्ड एयर फिर उसमें फिल करते हैं इसमें टायर में, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एयर का बहुत सारी यूटिलिटी है, बहुत सारे यूज है, पावर प्लांट में यूज होता है, ठीक है, गैस पावर प्लांट में आपको कंप्रेसर चाहिए आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या है कि आपको 2 स्टेज में तो डिस्कस कर ही लिए कि सिंगल स्टेज में क्यों करते हैं, 2 स्टेज में क्यों करते हैं। अब आपको एक्सपेरिमेंट में आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, क्या क्या रीडिंग लेनी है। तो एक तो एनर्जी मीटिंग रीडिंग लेनी है, स्टार्टिंग किया जब बंद किया तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया वो रीडिंग आ जाएगी, और साथ में आरपीएम, किस आरपीएम पे वर्क कर रहा है, ठीक है, ये मोटर ये फ्लाईव्हील किस आरपीएम पे इसको रोटेट करवा रहा है, ठीक। और ये टेम्परेचर कैसे करके चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए किस टेम्परेचर पे एयर सक की है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाएगा T1। फिर क्या हो जाएगा कि उसी टेम्परेचर पे इसके अंदर फर्स्ट स्टेज में एयर जा रहा है, एयर का इनलेट टेम्परेचर जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर लगभग बराबर होगा। उसका फर्स्ट स्टेज में जब कंप्रेस करेंगे तो यहाँ से जब इंटरकूलर में जा रहा है फर्स्ट स्टेज के बाद तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो वो टेम्परेचर चाहिए हमको। फिर इंटरकूलर से जब निकला है तो इसका हमको मालूम है कि कूल डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो ये टेम्परेचर चाहिए। फिर सेकेंड स्टेज में जब गया है और इंटरकूलर से जब निकला है तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, और सेकेंड स्टेज जब बाहर निकला है तब टेम्परेचर, तो हमको कितना टेम्परेचर होगा T1 सक्शन टेम्परेचर जिसमें सक कर रहा है फर्स्ट स्टेज में, T2 इंटरकूलर के पास जब जा रहा है तब, T3 जब इंटरकूलर से निकल रहा है, और T4 जब सेकेंड स्टेज से निकल रहा है। ये 4 टेम्परेचर के यहाँ से हमको टेम्परेचर स्क्रीन से मेजर करना है, चारों टेम्परेचर, ठीक है। और ये मैनोमीटर हेड की जो रीडिंग हमको है, डिफरेंस हेड की डिफरेंस वो हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, परफॉर्मेंस से। अब हमको निकालना क्या था इसका, तो हमको निकालना था इसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ठीक है। ये आपको है कंप्रेसर स्पीड जो बताया था, ये डिलीवरी प्रेशर आपको है। डिलीवरी प्रेशर कहाँ से देखोगे तो आप 2 प्रेशर गेज यहाँ पे लगेंगे, एक तो प्रेशर गेज लगा हुआ कहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन में कंप्रेस करके गया इंटरकूलर से, तो ये फर्स्ट स्टेज का प्रेशर कितना, इंटरमीडिएट प्रेशर बताएगा ये। सेकेंड या ये चैम्बर में लगा हुआ है कि जो स्टोरेज आपको वेसल है उसमें लगा हुआ है कि कितना प्रेशर पे ये स्टोर किया, ठीक है। 2 प्रेशर गेज हो गया। ये मैनोमीटर हेड हमने बताया था, तो आपको जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसके बीच में जो हेड डिफरेंस आ जाए H1 H2 का, ठीक है। टाइम फॉर एनरोलेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन बेसिक किया गया है, मैनोमीटर हेड डेल एच है। तो अब ये हेड डिफरेंस हमको किसका है, डेल एच H1 - H2 किसका है, वाटर का, क्योंकि वाटर फिल है उसमें। हमको चाहिए किसका, एयर का। तो हमको मालूम है वाटर और एयर क्या है कि सेम प्रेशर पे है, P = क्या हो जाएगा ρgh। तो ρgh फॉर एयर और ρgh फॉर वाटर इज सेम, बिकॉज प्रेशर ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ वाटर इज सेम। जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो HA आ जाएगा वो डेल एच किसका आ जाएगा, वाटर का इंटू रो वाटर इंटू बाई रो एयर। रो वाटर 1000, रो एयर 1.293 kg/m³, ठीक है। इससे हम क्या आ जाएगा, HA आ जाएगा, ठीक है। एरिया हमको मालूम है रुपीज़ का 5/d², ठीक है। ये दिया हुआ D और L लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जिसमें आप इसको क्या करवा रहे हैं, इसको कंप्रेस करवा रहे हैं उस आपको दिया हुआ सिलेंडर का, ठीक है। NKT आपको दिया हुआ एनर्जी मीटर कितना ये कंज्यूम हो रहा है उस पर, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको मालूम है कि क्या होगा, Q एक्चुअल अपन Q थ्योरेटिकल। Q एक्चुअल तो कितना कंप्रेस हुआ, Q थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेट किए हैं बाय फार्मूला की कितना इसकी
वॉल्यूम सक होना चाहिए। तो एक्चुअल कितना सक हुआ डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल, ये डिस्चार्ज, इस पर हम निकालते हैं इसकी। ठीक है, ये है डिफरेंस ऑप्शन टेबल है। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है वॉल्यूम से वो क्या है, फ्री एयर डिलीवर्ड मीटर क्यूब पर मिनट जो डिस्चार्ज बताया, और कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट। तो कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है कितना होगा, जो थ्योरेटिकल है, ये जो थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, थ्योरेटिकल मतलब क्या कि कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस किया। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जब वो मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए आपको एक सर्टेन जो पिस्टन का मूवमेंट है और TDC BDC या BDC TDC जो है, तो वो मूवमेंट यहाँ TDC BDC की बात तो होगी नहीं, क्योंकि वो क्या सिलेंडर क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे IDC ODC की बात करेंगे, इनर डेड सेंटर आउटर डेड सेंटर की बात, या अगर आपको वर्टिकल है तो हम फिर TDC BDC की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम है वो कितना होगा, पाई फॉर D स्क्वायर इंटू L, तो वो तो हो जाएगा थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल कितना ये सक किया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको डेल एच जो निकाला वो उसको उससे क्या निकाल जाओगे आप, निकालोगे डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होगा आपको एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया आपको ओरिफिस का पता है पाई ओवर डी स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए आपको मालूम CD √100 टू GH से आप निकालोगे, तो एच तो हम डेल एच निकाल चुके हैं, इससे हमको क्या निकल जाएगा ये Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल 100। ठीक, आइसोथर्मल एफिशिएंसी आपको आइसोथर्मल वर्क डन अपॉन IB इंटू 100, ये हमको पता है, ये आपका टेबल है। ठीक है, ग्राफ जो प्लॉट करना है वो डिलीवरी प्रेशर भाषा इफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, डिलीवरी प्रेशर अपॉन आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी, अलग अलग डिलीवरी प्रेशर पे अलग अलग आपको निकालना है, ये ग्राफ फाइंड करना है। प्रिकॉशन क्या आपको ध्यान रखना है, डू नॉट रन द ब्लोअर इफ सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन 380 वोल्ट, चेक द डायरेक्शन ऑफ द मोटर इफ द मोटर रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, चेंज द फेज लाइन ऑफ द मोटर टू रन इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इलेक्ट्रिकल अर्थ एंड न्यूट्रल कनेक्शन करेक्टली। ठीक है, today's experiment is to study of multi-stage air compressor and find its volumetric efficiency। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर एंड मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर मतलब क्या है कि जो कंप्रेशन कर रहे हैं वो सिंगल स्टेज में नहीं है। ठीक है, 2 स्टेज में कंप्रेस कर रहे हैं या 3 स्टेज में, मोर देन 1 स्टेज में। तो ये आपको क्या है 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। तो ये जो है एयर कंप्रेसर जैसे डबल स्टेज दिख रहा है आपको, नाम तो लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख रहा है 2 स्टेज एयर कंप्रेसर। मतलब 2 स्टेज मतलब जो कंप्रेशन हो रहा है वो 2 स्टेज पे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये पे कंप्रेशन कर क्यों रहे हैं या कंप्रेसर कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो ऐसा कंप्रेसर आप देखते हो हवा हम फील करते हैं, ओके कंप्रेसर दिखता है वहाँ पे, क्योंकि हमको एयर जो फ्लो करवाना है किसी ट्यूब में, ठीक है, तो कैसे हाई प्रेशर पे फ्लो करवाना है, तो प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, वो कंप्रेसर के थ्रू। कहीं पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट, वहाँ पे हमको हाई प्रेशर चाहिए, एयर का जहाँ भी प्रेशर हमको इंक्रीज करवाना है, जहाँ पे हाई प्रेशर एयर इंक्रीज में हमको वर्किंग करवाना है, तो एयर का प्रेशर इंक्रीज कैसे हो रहा है, वो एयर कंप्रेसर थ्रू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको रेफ्रिजरेंट की करवाना है, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर अलग होता है, तो एयर कंप्रेसर क्या हो रहा है 2 स्टेज एयर कंप्रेसर, यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या है एयर। ठीक है, और इसका प्रेशर इंक्रीज करवा रहे हैं क्योंकि हम अलग जगह पे पावर प्लांट हो गया या कहीं पे भी हमको इसकी एयर का प्रेशर को हाई चाहिए। ठीक, ये देख लीजिए क्या कंप्रेस एयर को स्टोरेज टैंक है। अब ये मोटर है, ये मोटर क्या कर रहा है, ये इस दोनों में जो है कंप्रेसर है, ये कौन सा कंप्रेसर है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, ये क्या है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन सिलेंडर जो इंजन में उस असेंबली है पिस्टन सिलेंडर की। ठीक है, पिस्टन जो रेसिप्रोकेट कर रहा है उसी मोशन में एयर को क्या कर रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है, एयर को सक करता है, फिर एयर को कंप्रेस कर रहा है, बाहर निकल रहा है आपको। तो अब ये सिंगल स्टेज में हो रहा है, मतलब ये सिंगल पिस्टन असेंबली है, तो एक ही बार उसको कंप्रेस किया, उसको बाहर निकाल दिया और उसको फिर स्टोरेज टैंक में भेज दिया, तो वो सिंगल स्टेज हो गया। 2 स्टेज मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो देखिए दो सेक्शन में अलग अब कंप्रेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में इसको कंप्रेस किया, मान लो क्रिटिकली सोचिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम दिए थे, इसको सक किए थे और कंप्रेस इंक्रीज किए 5 बार। अब 5 बार तक इसने किए, फिर 5 से 6 बार हम यूज करें, 5 से 10 बार में कंप्रेस कर रहे हैं सेकंड स्टेज मतलब दूसरे हम सेक्शन में, यहाँ पे पिस्टन अलग है, या उसी में आप 2 पार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है पिस्टन सिलेंडर असेंबली अलग है यहाँ पे, तो ये इस स्टेज में 5 से 10 हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज में कहाँ से हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 5 बार तक, और फिर यहाँ पे क्या हुआ 5 से 10 बार में, तो ये 2 स्टेज हो गया। थ्री स्टेज का होता है फिर अलग से आपको असेंबली सिस्टम होता है, वहाँ पे उसको फिर 10 से 15 बार पे इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम मल्टी स्टेज यूज क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं, कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, कि जैसे हमको ये कहाँ यूज करेंगे, अगर हमको जहाँ लो प्रेशर इंक्रीज करवाना है, जहाँ पे एयर का प्रेशर को कम इंक्रीज करवाना है, वहाँ तो हम सिंगल स्टेज में काम ले लेते हैं, लेकिन हमको जहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए
एयर जो वर्क करवाना है 30 बार 50 बार 100 बार किसी पे, तो वहाँ पे हम मल्टी स्टेज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि जैसे हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, हमको देना क्या पड़ रहा है, उसको अपने आप तो कंप्रेस नहीं हो रहा है, उसको हमको देना क्या पड़ रहा है, तो कंप्रेशन के लिए यहाँ पे क्या पिस्टन का मूवमेंट है, पिस्टन मूवमेंट क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। तो मोटर किससे रन कर रहा है, मोटर को कौन रन करवा रहा है, तो मोटर रन करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, वही वो क्या है कि हाई प्रेशर का हमको अगर इसको इंक्रीज करना है और सिंगल स्टेज में है तो हमको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मल्टी स्टेज यूज कर रहे हैं तो मल्टी स्टेज में हो क्या रहा है, इसकी हमको वर्क इनपुट है, जो वर्क इनपुट किस फॉर्म में है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम सेव कर रहे हैं, उसको हम कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बात देखिए। तो हमको निकालना क्या है, इसकी पहले एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी है इसकी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है, सॉरी इसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है आपको पता होगा। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो क्या है, फ्री एयर डिवाइड बाय कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो सक हो रहा है और कितना उसको फिर डिस्प्लेस किया, तो एयर सक कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये ओरिफिस मीटर है, इस ओरिफिस मीटर के थ्रू एयर सक हो रहा है, ठीक। और इसके थ्रू यहाँ पे क्या लगा, ये देखिए U2 मैनोमीटर है जिसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है, अभी तो इसका लेवल सेम है, जैसे स्टार्ट होगा सक्शन होगा इसका हेड डिफरेंस आएगा, ठीक। और वो फिर सबको कहाँ आ रहा है, फर्स्ट स्टेज पे, ये एयर जो एयर पाइप के थ्रू एयर टैंक से कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेज पे। तो यहाँ पे आया, इसके अंदर क्या लगा हुआ बताया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, पिस्टन है, सिलेंडर है, एयर इसके अंदर सब हुआ, पिस्टन उसको सक्शन मोशन में नीचे जा रहा है, फिर इसको क्या करेगा, पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेस कर रहा है, धीरे धीरे वो कंप्रेस किया, प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम उसका एयर इंक्रीज हुआ, उसको फिर ट्रांसफर करेगा या तो टैंक में, अगर सिंगल स्टेज होता, लेकिन 2 स्टेजेस का मतलब इसको फिर टैंक में नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सेकंड पोर्शन में। सेकंड पोर्शन में पिस्टन और सिलेंडर की असेंबली अलग है, तो यहाँ पे फिर आ रहा है कहाँ पे, सेकंड यहाँ पे पिस्टन पे, फिर वो इसको फर्दर कंप्रेस करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि बीच में ये ट्यूब टाइप का लग रहा है, इसमें ये जाली लगा है, ये क्या फिंस है, ये देखा होगा अपने बाइक पे भी लगी हुई फिंस है। और ये ट्यूब क्या कर रहा है कि फिंस क्या कर रहा है, ये जैसे इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर में अगर इसको कंप्रेस किया जाए हम, तो हमको जितना ज़्यादा पावर देना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे कंप्रेशन के लिए, तो पावर हमको ज़्यादा चाहिए। अगर इसका हम टेम्परेचर कम कर दें, कंप्रेशन टेम्परेचर, तो हमको पावर क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम टेम्परेचर कैसे रिड्यूस करते हैं, इसको हम फ्लो किसके थ्रू करवा रहे हैं, इस पाइप के थ्रू, और प्रेशर हम मानते हैं क्या, कांस्टेंट, क्योंकि ये इसकी एरिया बढ़ाने में कुछ कर रहे हैं, तो ये पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो पाइप वेरी नहीं कर रहा है, तो हम क्या मान रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट मान रहे हैं। प्रेशर रहना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन रहता नहीं है, डिस्कस करेंगे क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, तो पाइप के थ्रू भी क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लॉसेस के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कुछ तो कमी आएगी, लेकिन थ्योरेटिकली हम क्या मानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। और ये फिंस क्या कर रहा है, इस ट्यूब में एयर कंप्रेस्ड एयर फ्लो कर रहा है, जिसका प्रेशर बढ़ाने के कारण टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया था। अब बाहर से एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, इस फिंस से हीट ले रहा है, किसका हीट ले रहा है, कंप्रेस्ड एयर से हीट ले रहा है, और उसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गया। अब प्रेशर हम मान रहे हैं कुछ कमी है, लेकिन लगभग सेम रहा, प्रेशर डिक्रीमेंट नहीं हुआ, डिक्रीज क्या हुआ, टेम्परेचर। अब जैसे मान लो प्रैक्टिकल करेंगे, पता चलेगा कि जैसे बताया था शक करेंगे इस प्रेशर पे, अब ये 5 बार या 10 बार इंक्रीज किया प्रेशर, अब 10 बार से 15 बार कहाँ पे इंक्रीज करवाएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्री किया, फिर इसको फर्दर कंप्रेस करेंगे, तो इसका प्रेशर 5 बार से फिर 10 बार पर इंक्रीज हुआ, और उसको फिर हम कहाँ भेजेंगे, इस टैंक में भेजेंगे। अगर ये नहीं होता, सिंगल स्टेज में इसको कंप्रेस करते, तो जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ाने जा शुरू कर रहे हैं कंप्रेशन, वैसे इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट हमको अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर 10 बार पहुंचना था, तो हम क्या करते, इसको कंप्रेस कर रहे तो धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमको वर्क जो कंप्रेसर वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिर क्या कर रहे हैं, 2 स्टेज में इसका बीच में टेम्परेचर डाउन कर दिए, और फिर कंप्रेस कर रहा है। टेम्परेचर डाउन करने से प्रेशर तो डिक्रीज नहीं हुआ, प्रेशर तो लगभग उतना ही रहा। टेम्परेचर डाउन करके फिर हमको कंप्रेस करने में क्या फायदा हुआ कि जो वर्क इनपुट हमको कम देना पड़ा। कैसे क्या, हम जब बात करेंगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो वर्क कंप्रेसर है वो प्रोपोर्शनल है, तुमको किस टेम्परेचर में उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो वर्क कंप्रेसर मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं कंप्रेसर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 स्टेज है, तो क्या लगा हुआ है, फिंस लगा हुआ है तुमको आपको, और ये फिंस जो लगा हुआ है किस पूरा जो इक्विपमेंट या पूरा सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकूलर मतलब बीच का कूलर, इस दोनों के बीच में जो कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इंटरकूलर डिवाइस, एक पाइप टाइप की है, पाइप के ऊपर फिंस लगी हुई है, इंटरकूलर है। और ये 2 स्टेज आपको जो कंप्रेसर है, कौन सा कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे प्रेशर जो है 2 प्रेशर गेज लगा हुआ है, एक तो जो टैंक में हम स्टोर कर देंगे, किस प्रेशर गेज दिया हुआ है उस प्रेशर पे हमको डिलीवर करेंगे, तो ये डिलीवरिंग पाइप है, देखो यहाँ आप, ठीक है। यहाँ से इसको खोलेंगे वाल्व को, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
कि जो स्टोर कर रखे हैं हमने टैंक में, जो जिस प्रेशर पे एयर कंप्रेस एयर, उसको यहाँ से सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो स्टोर कर रहे हैं वो एयर सक कर रहे हैं इसके थ्रू, एयर किस पे सक कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे सक कर रहे हैं जो एयर आएगा, उसको फिर फर्स्ट स्टेज में कंप्रेस किए, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ तो किससे बताएगा, इस प्रेशर गेज से बताएगा आपको। क्योंकि यहाँ पे जो डिलीवर निकल रहा है बाहर, इसका प्रेशर बढ़ा फर्स्ट स्टेज में, और यहाँ से यहाँ तक बेच में प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज तो नहीं हुआ, वो कॉन्स्टेंट ही रहा। ये किस प्रेशर तक बढ़ा यहाँ तक फर्स्ट स्टेज में, वो क्या बताएगा ये, या तो ये प्रेशर क्या बताएगा फर्स्ट स्टेज में कितना प्रेशर बढ़ा, या किस प्रेशर पे आप सेकंड स्टेज में ये जा रहा है यार। ठीक है, इसकी यूनिट आप देखो केजी परसेंट स्क्वायर में है और पाउंड पर स्क्वायर में है, तो हमको किस में लेना है आपको। ठीक है, केजी परसेंट स्क्वायर में उसको रीडिंग लेनी है आपको। ठीक, उसके बाद जो है ये सेकेंड स्टेज में गया और फिर कंप्रेस होकर फिर टैंक में गया, तो कुछ देर इसको रन करते जाएगा तो धीरे टैंक का प्रेशर बढ़ते जाएगा, इसका एरिया ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जैसे इसका प्रेशर बढ़ते जाएगा तो मैक्सिमम लिमिट आ जाएगी कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ इस प्रेशर पे ये डिलीवर कर रहा है। ठीक है, ये प्रेशर हमको बता रहा है आपको। ठीक, इसकी यूनिट भी आपको केजी परसेंट स्क्वायर में है या पाउंड पर इंच स्क्वायर में है। ठीक, तो आपको वर्किंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, यहाँ यही एनर्जी मीटर दिया हुआ है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया यहाँ से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो T1 T2 ये भी आपको टेम्परेचर का अलग मल्टीमीटर दिया हुआ है, T1 T2 T4, मतलब यहाँ पे देखिए थर्मोकपल लगा हुआ है। ठीक है, सेंसर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है, T1 क्या होगा, इनलेट टेम्परेचर फर्स्ट स्टेज पे, T2 क्या होगा जब उससे बाहर निकला जो इंटरकूलर में जा रहा है, T3 क्या होगा जब इंटरकूलर से निकल रहा है तब का टेम्परेचर, T4 क्या है आपको जब सेकेंड स्टेज से निकल रहा है एयर तब का टेम्परेचर। तो ये सारे टेम्परेचर को मेजर करना है, T1 T2 T3 T4 पता है। फिर T1 क्या है T1 है कि किस टेम्परेचर पे इसके अंदर जा रहा है, फर्स्ट स्टेज में किस टेम्परेचर पे एयर अंदर जा रहा है। T2 क्या है कि फर्स्ट स्टेज के बाद कितना टेम्परेचर पर निकल रहा है, या इंटरकूलर में किस टेम्परेचर पर जा रहा है। इंटरकूलर काम क्या है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना, इसको क्या कर रहा है टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, ये T2 हो गया। T3 क्या होगा यहाँ पे T3 किस टेम्परेचर पे ये इंटरकूलर से बाहर निकल रहा है, तो T3 हमेशा क्या होगा T2 से कम होना चाहिए, सबसे बात है, तभी तो ठंडा हुआ। या T3 क्या हो गया इंटरकूलर का एग्जिट टेम्परेचर, या तो सेकंड स्टेज का तुमको इनलेट टेम्परेचर, तो यहाँ से फिर इनलेट हुआ T3 और यहाँ से फिर सेकंड स्टेज कंप्रेस हुआ तो ये फिर T4 बताएगा टेम्परेचर। तो T1 T2 T3 T4 चार टेम्परेचर हमको लेना है यहाँ पे। ठीक है, दो प्रेशर गेज क्या हुआ, एक फर्स्ट प्रेशर जो बता रहा है वो फर्स्ट स्टेज का कितना डिलीवर कर रहा है, और सेकंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर सॉरी मैक्सिमम प्रेशर जो इसको डिलीवर कर रहा है टैंक किस प्रेशर पे वर्क कर रहा है। जैसे इंक्रीज कर रहा है मतलब इतना प्रेशर का एयर इसमें स्टोर है, उस प्रेशर एयर को हम यूज कर सकते हैं जहाँ हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे रन करेंगे इस प्रेशर गेज की रीडिंग। ठीक है, उस प्रेशर गेज की रीडिंग आपको धीरे इंक्रीज होगी, इस प्रेशर गेज की रीडिंग लेनी है, इस प्रेशर गेज की रीडिंग लेनी है, और ये जो U2 मैनोमीटर है इसमें वाटर जो पड़ा हुआ है ये हेड डिफरेंस कितना है वो रीडिंग लेनी है। उससे हमको क्या निकालेंगे कि एयर को जो सक कर रहे हैं उसकी किस रेट पे सक कर रहे हैं, उसका क्या रेट पे एयर को सक कर रहे हैं। ठीक है, LPD HPD लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो हाई प्रेशर है डायमीटर, एक लो प्रेशर डायमीटर है। HPD मतलब जो ये आपको दो आपको दिया हुआ है सिलेंडर और पिस्टन असेंबली, HPD क्या होगा कि HPD होगा ये LPD होगा कि दो स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में प्रेशर कम होगा तो लो प्रेशर वो है, और ये हाई प्रेशर जोन है। ठीक, और ये आपको लगा हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो रोटेट कर रहा है, तो ये किस क्या लगा हुआ है, ये RPM सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, कि किस RPM पे ये रोटेट कर रहा है। ठीक, वो आपको RPM यहाँ से बता देगा, आपको RPM मेजर कर लीजिएगा यहाँ से, एनर्जी मीटर से एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है वो हो जाएगा मेजरमेंट। T1 T2 T3 T4 से आपको क्या निकल जाएगा, T1 से निकल जाएगा कि किस टेम्परेचर पे इनलेट अंदर जा रहा है फर्स्ट स्टेज में, T2 किस टेम्परेचर पे बाहर निकल रहा है इंटरकूलर के पास, T3 क्या इंटरकूलर से बाहर कितना निकला, T4 क्या सेकंड स्टेज के बाद कितना निकला। ये चारों टेम्परेचर का रीडिंग लेना है, ये दोनों प्रेशर गेज की हमको रीडिंग लेनी है, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो मैं आपको स्लाइड में बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है।